ओम शांति। इस सत्र की, इस सेशन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं कि एक गांव था जहां पर एक कुआं था और उस कुएं से बहुत बदबू आती थी। गांव वालों ने बहुत कुछ कोशिश की परंतु वो बदबू नहीं जा रही थी। उन्होंने सुना कि गांव के बाहर कोई एक संत महात्मा आए हैं, क्यों ना उनके पास जाए। तो वो लोग उनके पास जाते हैं और वो महात्मा जी से कहते हैं कि गांव का जो एकमात्र कुआं है और जिससे हम पानी पीते हैं वो विषाक्त हो गया है, पॉइजनस, और उसमें बहुत बदबू आ रही है, क्या करें। तो महात्मा जी कहते हैं कि उसमें गंगा जल डालो। तो गंगा जल डाला जाता है परंतु समस्या वैसी की वैसी। फिर सारे गांव वाले उस महात्मा के पास जाते हैं, फिर कहते हैं कि पानी तो अभी भी वैसा ही है, बदबूदार, क्या करें। तो महात्मा जी कहते हैं एक काम करो, कोई भगवान की कथा करो तो शायद जल पवित्र हो जाए। वो भी करते हैं परंतु प्रॉब्लम एज इट इज। फिर से उनके पास जाते हैं तो महात्मा जी कहते हैं कि वहां पर अच्छे अच्छे द्रव्य डालो, सुगंधी, शायद दुर्गंध चली जाए। परंतु वो भी किया जाता है और बहुत कुछ किया जाता है परंतु स्मेल, वो दुर्गंध वैसी ही रहती है। फिर से लोग उनके पास जाते हैं तो महात्मा जी पूछते हैं क्या हुआ, क्या था। तो वो कहते थे कि कुछ जानवर लड़ रहे थे, शायद कोई 3 कुत्ते, और लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए थे। तो महात्मा जी पूछते हैं क्या तुमने उन 3 कुत्तों को बाहर निकाला, उन जानवर। तो वो लोग कहते हैं वो तो आपने बताया नहीं, हम तो वो सारे उपाय कर रहे थे कि जिससे वो कुआं और उसका पानी शुद्ध हो जाए, बट जो कारण था वो तो निकाला ही नहीं। दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ वेल, बट it is a very significant in the sense human being is also a well like this, and in that well, in this jet yuga, in this jet age, 3 animals, dead animals, have fallen down, and because of these 3 animals the entire well is filled with fetid odor. And these 3 dead animals are: first, inferiority complex; second, self-victimization; and third, negative self-talk. This is a well where these 3 dead animals have fallen, and because of these 3 animals, the entire well has become poisonous, and we cannot drink any water from it. So what are those 3 evils or 3 dead animals? The first I said is inferiority complex. I am talking of the jet age. I am talking of this age, of the digital age. I am not talking of religious scriptures. I am not talking about what is given, told by religious leaders or some spiritual institutions. I am talking something else. These are the 3 things in their subtlest form are hidden somewhere in each and every person. Somewhere he feels inferiority. Somewhere he is doing self-victimization. In English it is known as playing the victim card. What is it? We will see. And third thing, there is a continuous chatter which is going on within. There is a continuous talk which is going on within. And that is negative self-talk. There are different categories of self-talk. Self-talk is something just as in a cricket stadium, there is a stadium and players are playing. For example, cricket they are playing. So there is one commentator. He gives a continuous live commentary, and those commentaries, that commentary is being heard by all those audience and all those who are seeing that program live. But those players who are playing, they can't hear the commentary. This self-talk is such a thing that we are the players
And at the same time, we hear that commentary, which is going on and on and on. And more often than not, this commentary is negative. Most likely that it is negative. सबसे पहली बात है हीनता का भाव, inferiority complex. Just an example, दो बच्चे हैं, एक की उम्र है 7 साल, एक की उम्र है 9 साल. दोनों खेल रहे हैं और खेलते खेलते अचानक जो 9 साल का बच्चा है वो कुएं में गिर जाता है. जो छोटा बच्चा है 7 साल का, वो सोचता है इसको मैं कैसे निकालूं, यहां जाता है वहां जाता है, बहुत कोशिश करता है किसी से मदद लूं, कोई भी नहीं है वहां पर. तो बहुत मुश्किल से रस्सी ढूंढता है और रस्सी अंदर डालता है और उसको खींच के निकाल लेता है. एक छोटा सा 7 साल का बच्चा पर एक साहसी कार्य करता है और बाद में लोगों को इतना आश्चर्य होता है तुमने ये कैसा किया. तो लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसा बताते हैं कि उस समय उस 7 साल के लड़के को ये बताने के लिए कोई नहीं था वहां पर कि यू कैनॉट डू दिस, दैट इज व्हाई ही कुड डू इट. वहां पर अगर बड़े लोग होते तो उसको शायद कहते कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो इतने छोटे हो, तुमने कभी ये किया है. एंड वी सी दैट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर टॉट, whether our parents, our teachers, or elders, or seniors, they keep on telling us something or other like that, probably you can't do this, it is beyond you, your intellect is less. वो जिस तरह से फीडिंग होती है बचपन से लेकर, तो एक मनुष्य के मन में हीनता का भाव आ जाता है, मैं ये शायद नहीं कर सकता. वो कुछ भी हो सकता है, चाहे हेल्थ का फील्ड हो, करियर का फील्ड हो, या कोई इंटरेस्ट हो, कोई हॉबी हो, या कुछ भी हो, परंतु हर जगह कहीं ना कहीं एक हीनता है. इन दिस वेल देयर इज अ डेड एनिमल कॉल्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड वी हैव टू गेट रीड ऑफ दिस. वी विल सी हाउ. द सेकंड इज सेल्फ विक्टिमाइजेशन, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. जैसे हम तीर मारते हैं, एक होता है खुद ही को तीर मारना, खुद ही को हर्ट करना, खुद ही को दुख देना, हर चीज के लिए खुद को जिम्मेवार समझना, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं नहीं होता तो शायद सब अच्छा होता. एक होता है ब्लेम गेम, दूसरों को ब्लेम करना, बट उससे भी खतरनाक एक दूसरी चीज है, एंड दैट इज नोन एज सेल्फ विक्टिमाइजेशन. यू विक्टिमाइज योरसेल्फ, एंड पर्सन रिमेन्स इन दैट स्टेज ऑफ विक्टिमाइजेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम. एक गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ जीता है. और जो भी व्यक्ति जिसमें अपराध भाव है, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, जीवन में किसी भी क्षेत्र में, चाहे मटेरियल चाहे स्पिरिचुअल, he cannot progress because he is carrying the feeling of guilt feeling. He is carrying that feeling, I have done something wrong, I should not have done. He is carrying the feeling of repentance, but yet he cannot get rid of it. So he lives with that feeling कि I should not have done this, yet I have done this. So this is known as a deep sense of self-victimization. For example, recently I was reading somewhere, Thy Name is Faith. This is a very beautiful book by one Christian person, Father Ken Barker. So he has written about a person, he has written about a priest in California. He said that there was a priest in California, and one night he receives a phone call on Sunday night कि please come from a hospital. One nurse calls. Nurse is telling father, can you come? One patient is on the dead bed, about to die any moment. If you can come for 2 minutes, he will feel relieved. Please come, father. So the father is so tired, it is Sunday night, so he feels earlier, no, I should not go. But then he feels, okay, let me go. And he goes. वो जैसे ही पेशेंट के पास जाता है, पेशेंट अभी मरने वाला है, वो पेशेंट बोलता है यहां से निकल जाओ, गो टू हेल, बिल्कुल मेरे पास नहीं आना. ही इंसल्ट्स द फादर. तो फादर बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद में सोचते हैं अभी क्या जाना है. पेशेंट तो मानने को, मतलब सुनने को भी रेडी नहीं है, क्या मैं इसको धर्म का उपदेश दूं. तो ही फील्स लेट मी गो बैक, बट इट इज रेनिंग सो हेवीली दैट टाइम, so he feels let me stay for some more time, so he stays 1 hour more. He goes again. वो पेशेंट फिर से उसको इतना जोर से चिल्लाता है, कहता है मैंने बोला ना एक बार तुमको नहीं आना है, जाओ यहां से. पेशेंट उनको भगा देता है. फिर उसके बाद में नेक्स्ट वो फादर बाहर आते हैं. फादर फिर 1 घंटा रुकते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तूफान है, आंधी है, कैसे जाएंगे. फिर ही गोज बैक अगेन. वो पेशेंट फिर कहता है ठीक है मैं आपको
एक बात बताना चाहता हूँ, पूरा जीवन भर मैं इस चीज के साथ रहा हूँ। जब 30-40 साल पहले मैं स्टेशन मास्टर का काम करता था, एक बार मैंने बहुत दारू पी ली थी और वो गलत सिग्नल दे दिया, तो ट्रेन पटरी से निकल गई और एक कार जा रही थी, उसको टकरा गई और वो कार में 3 लोग थे, एक माँ थी और 2 बेटे थे, वो तीनों के तीनों मर गए। आई एम कैरिंग दैट गिल्ट फीलिंग, व्हाट शुड आई डू? होल लाइफ 30 years I am living with this guilt feeling that I have killed 3 people. पुलिस से तो मैं बच गया, परंतु I cannot get rid of this guilt feeling, मैं क्या करूं? फादर बोलते हैं, कौन सा दिन था, कौन सा साल था, कौन सा स्टेशन था, जानकारी पूछते हैं, और बताओ और बताओ। तो वो बोलता है ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था। वो कहता है, फादर कहते हैं, उस कार में एक छोटा सा बच्चा और भी था जो कि जिंदा रहा, और वो मैं हूं, और मैंने अपना जीवन सफल किया, भगवान को अर्पण किया। एंड टुडे in your last moment I tell you that I am forgiving you now, and he lives the body. So second is this guilt consciousness, this self victimization. Yes, if suppose somebody has done something wrong, there are always ways and means to get rid of it, but not that you continually keep on living with this self victimization whole life. And third is negative self talk. There are different types of negative self talk in psychology, it has been given. One is pessimism. You are negative about everything. Another is catastrophizing. You think that everything is going to doom, falling to doom. Everything is going to get destroyed. Nothing, this situation happened, nothing is good in this situation. Another is polarizing. You see only the worst part of the situation. Another is shoulding. Should. It should have been like this. ये जो हुआ ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। एक है मैग्नीफाइंग, छोटी सी परिस्थिति होगा पर उसको बहुत मैग्नीफाई करना। तो दिस इज नोन एज नेगेटिव सेल्फ टॉक, और वो अंदर ही अंदर चलते रहता है। You have to get rid of these two, and to get rid of these 3 things is to come to what is known as स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, और सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्डिंग सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम थ्रू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद बात करना। 2 प्रकार की बातें होती है, एक होती है हम जो बाहर गुफ्तगू करते हैं, और एक जो खुद से अंदर अपने आप से बात करते हैं। जो अपने अंदर अपने आप से हम बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ टॉक। And there are 2 types, positive, negative. More often than not, as I said, we are engaged in negative talk. Everything negative, right from the morning till night. About persons, about people, about time, about everything, about circumstances, about events of life, about past, about future. Our mind is so much engaged in that negativity that there is hardly any time for positive self-talk. What should we do so that we come out of this negativity, this negative chatter, this negative self-talk, and enter into the field of positive self-talk? So I'll tell you about 8 different methods. 8 different methods to achieve positive self-talk. Because it is only through this self-talk we can build self-esteem. And when there is no self-esteem in life, life is listless, worthless, good for nothing. We feel all those negative tendencies, self-victimization. We feel all those inferiority complex. We can't achieve anything. हमको लगता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, but they are just like wish. एक जैसा क्षितिज होता है, लगता है कि धरती और आकाश वहां पर टच हो रहा है, परंतु जाओ तो दिखता है वहां टच नहीं हो रहा है. It remains an unsatisfied dream. So there are 8 things we have to do in order to achieve or come to this positive self-talk. First thing, and which every one of you have to do in your daily life, every one of you, regardless of you like religion or not, regardless whether you like spirituality or not, this is immaterial. Even if you want to achieve success in your material life, whatever, you have to do these 8 things. First is silence.
Maun. Without silence, you cannot hear the internal voice. अंदर जो आवाज है ना, वो हम सुन नहीं पाते, और वो अंदर की आवाज कुछ ना कुछ बोल रही है निरंतर. Mahatma Gandhi has written somewhere in one article in Young India, 6th August 1921. He has written that हम लोग एक बार साउथ अफ्रीका में गए, वहां पर एक ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री थी, एक आश्रम था, और वहां देखा कि वहां सब लोग चुप है. तो मैंने पूछा वहां के हेड से, व्हाई पीपल आर साइलेंट? तो दैट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सेड, सी वी कीप ऑन डूइंग सो मेनी थिंग्स होल डे and there is an inner small voice and we have no time to hear that voice. When we will hear that voice? Is it not better that we stay calm and we stay quiet and listen that small inner voice which is internally going on? और वो मठाध्यक्ष कहते हैं कि इसलिए इस आश्रम का नियम है कि जो भी आएगा यहाँ पर मौन रहेगा. क्यों? क्योंकि क्या बोलना है वो हमको पता ही नहीं. जब हम शायद सीख जाएंगे तब हम बोलना चालू करेंगे. So Mahatma Gandhi has written a very good thing. He said that I am really impressed by this silence, and he said silence was my shield during the time when I was unable to speak, because there is always, in his own words, a propensity, a tendency to exaggerate things, to modify things, or to suppress the truth, and silence is necessary. तो सबसे पहली चीज जो चाहिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए वो है साइलेंस. एटलीस्ट मॉर्निंग 8 o'clock तक, एटलीस्ट शाम का जो समय है, 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह, इस 1 घंटे में ऑल्सो नॉट जस्ट द साइलेंस ऑफ द माउथ बट डिजिटल साइलेंस. डिजिटल साइलेंस, व्हाट्सएप का नॉइज थोड़ी देर बंद हो, एंड देन इन दैट मोमेंट यू टॉक विथ योरसेल्फ. दूसरों से बहुत बातें कर ली, दोस्तों से बहुत बातें की, माँ बाप से बहुत बातें की, रिश्तेदारों से बहुत बातें की, अपने आप से कब बात की? कितनी सारी चीजें हैं जिसका उत्तर, जिसका आंसर, जिसका सॉल्यूशन केवल और केवल मुझे पता है. अपने आप से बातें ही नहीं की. बाहर सब कुछ कर रहे हैं, बाहर देयर इज अ एक्सटर्नल फेम, ग्लोरी, नेम, बट इंटरनल देयर इज अ एम्प्टीनेस, इंटरनल देयर इज अ वैक्यूम. A discontent is there about everything. Though outside we are showing that we are very happy, I'm very happy, but that silence is missing because we are lost in that noise, in that commotion of disturbance. So the first thing for positive self-talk, and which everyone has to do, is silence. कहाँ से निकालना है उस साइलेंस को? चुराना पड़ेगा आवाज की दुनिया से. कैसे करना, क्या करना, खुद ही स्वयं को सोचना पड़ेगा. कैसे और किस मोमेंट में मैं चुप रहूं और खुद से बात करूं. फर्स्ट. सेकंड इज सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स एकांत. सॉलिट्यूड मीन्स when you are alone and nobody is around you. How many moments of the day we spend in solitude? Hardly any. And if you know, all the greatest discoveries of the world have taken place in silence and solitude. All the greatest inventions that ever happened, they did not happen in the din and the clamor of the world, but they happened in the moments of deepest of the silence. I was recently reading an interview by A.R. Rahman. He was saying कि जब मुझे नया म्यूजिक बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, सब तरफ से अपने आप को अलग कर लेता हूँ, सब तरफ से एकदम डीप साइलेंस और सॉलिट्यूड में चला जाता हूँ. क्योंकि मुझे जो गीत और संगीत बनाना है वो नहीं बनाना है जो ऑलरेडी बना चुका है. आई वॉन्ट टू मेक समथिंग न्यू. सो फॉर दैट क्रिएटिविटी, फॉर दैट न्यूनेस, आई नीड मूवमेंट्स ऑफ साइलेंस एंड मूवमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड. एंड इन दैट मोमेंट न्यू म्यूजिक इज क्रिएटेड. हम लोग जो सुनते हैं बाद में बहुत अच्छा म्यूजिक है, ये तो बहुत आगे की स्टेज है. इवन माइकल जैक्सन हैज सेड समवेयर कि व्हाट आई डांस दैट इज जस्ट एन एक्सटर्नल, बाकी internal dance occurs first. And a moment comes in my life when dancer and dance become one. Dancer and dance become one. Such an internal harmony happens. And all these things will happen only in solitude. So the second thing, every one of you have to seek, strive, make efforts to achieve
is some moments of solitude when you are alone. German philosopher Eckhart had said somewhere, उसने लिखा है कि मैं एक बार एकांत में बैठा था. Eckhart had written, I was sitting in silence somewhere in some jungle, in some woodland. So one of my friend was passing for that way. और वो आके उसने कहा, अरे मुझे लगा तुम अकेले बैठे हो इसके लिए मैं कंपनी देने आया हूँ. तो Eckhart says, I was enjoying my own company. Now you have come, after your coming, I have become alone. So that is the importance of solitude. So seek solitude and in that solitude talk with yourself. एकांत और उस मौन में अपने आप से बात करना. ये दूसरा. तीसरा है नेचर. थर्ड इज नेचर, प्रकृति. जब तक हम प्रकृति से दूर है, नेचर से दूर है, वी कैनॉट अचीव क्रिएटिविटी. Whatever it may be, any field of life, so long as you are away from nature, you cannot achieve creativity. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand and beneath the bough and stare as long as sheep and cow. अंग्रेजी लेखक लिखता है कि कैसा हमारा जीवन है. वो गाय हमसे अच्छी है, एक जगह रुक के देखती है, प्रकृति का आनंद लेती है, पर हम कहां भागे जा रहे हैं. So go near nature. Go. That nature could be anything. Sunset, sunrise. That nature could be evening, morning, chirping of the birds. That nature could be mountains and streams, sunlight, anything. But you go to nature and then positive self-talk will occur on its own. अपने आप वो प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति की गोद में अपने आप वो सकारात्मक स्व से बात करना, स्वचिंतन अपने आप होगा. तो तीसरी जो चीज है जो हर एक को करनी है वो है नेचर के पास जाना. फोर्थ, वॉकिंग. आप में से कितने लोग हैं जो डेली वॉक करते हैं? वॉक मतलब वो नहीं बोलना कि हम किचन जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, वो वाला वॉक नहीं. वॉकिंग. वॉकिंग मीन्स लॉन्ग वॉक. लॉन्ग वॉक पे चले जाना. एक अंग्रेजी लेखक ने कितनी अच्छी चीज लिखी है कि रात में एक बार मेरे पिताजी का और मेरा इतना झगड़ा हो गया कि सुबह जब हुई तो मैंने कहा, एक तो अब आप रहेंगे या मैं रहूंगा. पिताजी ने कहा निकल यहां से, घर मेरा है. तो उसने लिखा कि मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं निकल गया घर से, अब मैं कभी नहीं आऊंगा इस घर में. अब निकलने के बाद पता चला पैसे तो है ही नहीं, वैसे ही निकल गया, गुस्से में निकल गया. और तो क्या करूं, अब पैसे ही नहीं है, बस टैक्सी कुछ नहीं. सुबह का समय, अमृत वेले का समय, 4 बजे का, और चलता जा रहा है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर. और माइंड इतना शांत हो गया चलते चलते कि वो कहता है कि गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए. एंड ही कम्स बैक. बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में ये गिनाते हैं. सेल्फ टॉक. सो टॉक, वॉकिंग. Go for a very long walk. Listen some class, some good music or natural music of the nature. But go for a walk and you will feel energetic, fresh, refreshed. कोई समस्या है, put that question and go for a walk. This is the problem of life. I am feeling disturbed by this person. I am feeling disturbed by this event. कल किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया. Disturb. रात भर नींद नहीं आई. वॉक के लिए चले जाओ, लंबा 4 किलोमीटर. जब आओगे तब तक माइंड शांत हो गया होगा. तो फोर्थ इज वॉकिंग. फिफ्थ इज एफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस. आई सजेस्ट यू, जिसके पास भी मोबाइल है, मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एफर्मेशंस, वो डाउनलोड कर लो. उसमें अलग अलग चीजों के लिए एफर्मेशन दिखे हुए. वेट कम करना है तो क्या क्या बोलना है अपने आप से, हेल्थ चाहिए तो क्या क्या बोलना है अपने आप को, कोई एडिक्शन से मुक्त होना है, गेम्स एडिक्शन है, शॉपिंग का एडिक्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन न्यूज रीडिंग, ऑनलाइन एनी एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन है, उसके लिए क्या क्या एफर्मेशंस चाहिए. पास्ट टेंस के एफर्मेशन, प्रेजेंट टेंस के एफर्मेशन, फ्यूचर के एफर्मेशंस. सो पॉजिटिव एफर्मेशंस. अपने पास टॉक लिखा हो, आपकी एक डायरी हो, डायरी में ऐसी 10 चीजें लिखी हो. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन योर करियर, उसमें लिखो आई एम अचीविंग सक्सेस, आई एम सीइंग माई सेल्फ एज अ ब्राइटेस्ट स्टूडेंट. Just as last time also I had given you example of our Dean, Dr. Aichit, when I was a medical college.
फर्स्ट डे ही केम इन मेडिकल कॉलेज 1960s में आए, तब उन्होंने सोचा कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसी कॉलेज का एक दिन मैं डीन बन जाऊंगा। फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट, रैगिंग का डर, उसमें उन्होंने ये चित्र, ये संकल्प किया, ये थॉट, ये प्लेज, और उसी थॉट को रोज देखते रहे और पिक्चराइज करते रहे, एंड वन डे he became the dean of that medical college. He told this event on his last day in that medical college when I was in the first MBBS. He narrated this, how a vision was created. Visualization, create करो एक visualization. खाली चीजों को, हर चीज से आंखों से देखना एक है मन से देखना। मन से देखना इज मोर पावरफुल। जो बनना है वो देखो कि ये मैं बन चुका हूं, दिस इज मी, आई हैव ऑलरेडी बिकम दिस, एंड नाउ दिस डिस्टेंस इज कमिंग नियरर एंड नियरर. So this is known as affirmations, and next is visualization. Combined together, स्वयं से बात करना, पॉजिटिव थॉट्स का कुछ लिख के रखना, लाइक अभी हमने जो शुरुआत की थी, आई हैव एबंडेंट एनर्जी, आई एम एंजॉइंग रेडियंट हेल्थ, आई एम इमिटिंग पॉजिटिव वाइब्स, आई हैव ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ माई लाइफ. ये चीज, जैसे कोई किसी को एक एडिक्शन, इंटरनेट का एडिक्शन हो गया, नाउ ही वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन. वो इंटरनेट की वजह से उसका आधा 8-8 घंटा जा रहा है, 10-10 घंटा जा रहा है, क्लिक 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 क्लिक, सर्फिंग सर्फिंग सर्फिंग, अननेसेसरी सर्फिंग, और कहां से कहां जा रहा है. ही इज गोइंग इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल द वर्थलेस सेंसुअलिटी, और वहां से अब निकल नहीं पा रहा है. टेक द स्वमान, टेक द सेल्फ रिस्पेक्ट, टेल द सेल्फ एस्टीम कि ये इंटरनेट के एडिक्शन से छूटना मेरे लिए दुनिया की सबसे आसान काम है, ये मेरे लिए सबसे आसान काम है. दिस इज नोन एज एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस. एंड नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन. अपने आप को देखो कि ये आदत से मैं छूट चुका हूं, ये जो निगेटिविटी की आदत है, हर चीज में निगेटिव देखना, हर चीज में निगेटिव देखना, इससे मैं छूट गया हूं. अब मुझे सब जगह पॉजिटिव दिखाई देने लगता है, अपने करियर भी, बाकी लोग भी. I don't see people as negative beings, as they are as if plotting against me, as if planning against me, but I see them as fellow beings, spiritual beings. So next is visualization. Affirmations, visualization, and then next 5. चाइना, जापान में 5 बंदर की चर्चा है, उसमें से 3 तो बहुत फेमस है, जिनको हम भारत में कहते हैं महात्मा गांधी के बंदर. पहला है बुरा ना देखो. इन जापान दैट मंकी इज नोन एज मिज़ारू. मिज़ारू, मिज़ारू अर्थात डू नॉट सी नेगेटिव. The more you see negativity around, the more negative talk will be there, and the more the negative talk, you will go down and down and down. फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां लो, डिप्रेशन की गोलियां लो. क्यों? Because you are seeing only negativity. Can there be another method कि we see only positivity? Let the situation be anything, but can we make a search for positivity in on those situations? So mizaru means not to see negative. Next is किक्याजारू. किक्याजारू means not to hear negative. But आप बोलेंगे दूसरे आके सुनाते हैं तो हम क्या करें? Let them tell us, but what to imbibe inside is with us. We will see one more thing about this. Third is not to speak negative. Otherwise there is a continuous habit. हमारे शब्द जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं. कभी कभी हमारे मन में भाव नहीं होता है, पर शब्द हम बोल देते हैं और उसके वजह से फिर पश्चाताप होता है. वर्ड्स जो हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने किसी को बोल दिया ये तो है ही ऐसा, इसको तो ये आता ही नहीं, ये हमेशा ही लेट करता है. You have just insulted somebody in front of everyone, and you feel repentant inside later on. So what we are speaking, if the words which we are speaking are negative, that will create negative self chatter, self talk within. So not to speak. ये 3 बंदर तो बहुत फेमस है. एक चौथा भी है जिसको वो कहते हैं शिज़ारू. शिज़ारू अर्थात not to do anything negative. And last monkey is not to think, Iwazaru. Ovazaru, not to think negative. So these are the 5 wise monkeys. I'll just give you one example. एक बाप होता है, उसके 2 बेटे होते हैं. एक जो होता है फुल पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि कुछ भी हो जाए वो पॉजिटिव ही रहता है. दूसरा जो बेटा होता है वो इतना निगेटिव होता है, इतना निगेटिव होता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हर चीज में निगेटिविटी ढूंढता है. तो एक दिन वो पिताजी, उनके 2 कमरे होते हैं. पहला जो बेटा है उसके कमरे को बहुत खिलौने से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं और बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं.
और शाम को उसको पूछते हैं, बोलो बेटो तुमको कैसे लगा? तो वो कहता क्या लगा, कैसे लगना था, वही सब फालतू चीजें, खिलौने तो क्या मतलब है, सब टूट गए खिलौने, वैसे भी टूटने ही वाले थे, फूल फूल तो मुरझाने वाले हैं, और ये जो डेकोरेशन है, तो आपने तो धर्म पढ़ा है, किताबों में लिखा है, सब नश्वर है, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, एवरीथिंग इज अबाउट टू गेट डिस्ट्रॉयड, सो इट इज यूजलेस। दूसरा जो बेटा होता है, पिताजी एक ऐसी युक्ति करते हैं, घोड़ा जो होता है ना, एक्सक्रीटा ऑफ द हॉर्स दैट इज नोन एज लीद, एक्सक्रीटा, उससे उसका कमरा भर देते, पूरा गंदी स्मेल, वो दूसरा जो बेटा होता है। अब पिताजी सोचते हैं कि लेट मी थिंक व्हाट ही डज इन दिस ग्रेटेस्ट ऑफ द नेगेटिव सिचुएशन, दैट आई हैव फिल्ड हिज रूम विद द एक्सक्रीटा ऑफ द हॉर्स व्हिच इज स्मेलिंग सो बैडली। सो ही गोज इन द इवनिंग एंड ही फाइंड्स कि वो बेटा नाच रहा है, झूम रहा है वो जो घोड़े का जो है उसमें ढूंढ रहा है कुछ, नाच रहा है, गाना गा रहा है। तो पिताजी उसको कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है देखो पिताजी, आपने घोड़े की लीद यहाँ तो है, इसका मतलब घोड़ा भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो मैं उसी घोड़े को ढूंढ रहा हूँ so I am searching that horse. So he see whatever is the situation, but he created something positive out of it. So what we see is very important. हम क्या देख रहे हैं, टाइम किस में जा रहा है, इंटरनेट पे बैठ के कौन से वीडियोस देख रहे हैं। अगर वो निगेटिव देखा जा रहा है, अगर वो सेंसुअलिटी देखा जा रही है, तो माइंड में भी वही एंटर करेगा, फिर दिन रात वही चिंतन चलेगा। क्या सुन रहे हैं, कौन से गीत सुन रहे हैं, कौन से सॉन्ग सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सी, सबका जो आधार है संकल्प है, सोच है, और ये सोच को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है जो आसपास इर्द गिर्द हो रही है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर इज कंट्रोल। आंखों को वो नहीं देखने देना है जो उसे नहीं देखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करियर इन टुडेज एज आर decimated, destroyed by internet. Internet is the biggest boon. We can learn so many things, but it is the greatest bane as well. Because what you are seeing, if you are seeing sensuality, the same sensuality will enter within. Then it will not be appearing to, you will not see human beings as human beings, but you will see them as sensual and sexual beings. And the same sensuality will enter into the inside the heart. And there won't remain any purity of relationship. फिर ना तो वो पति पत्नी का संबंध रहेगा इन फ्यूचर, ना तो वो फ्रेंडशिप का संबंध रहेगा, बट इट विल बी जस्ट अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसुअलिटी विद इन। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट आई एम हियरिंग, what I am speaking, what I am thinking, and what I am doing. These are the 5 things. These are known as 5 wise monkeys. Mizaro, Kikazaro, Ivazaro, Shizaro, Omavazaro. ये 5 नाम है उन monkeys के. Remember all of these things. और अभी जो युद्ध है आप, यहां पर अगर कुछ गलती हो जाती है तो जीवन भर पर्सन रिपेंट्स, और यहां यदि कुछ अच्छा कर लो तो then you have seen the example of Sister Rupa. 25 years of life she has dedicated to this institution, to this job, to this profession. This is not a joke. It requires कितने temptation आए होंगे. वो चाहते थे तो संसार में भी जा सकते थे, हजारों लाखों करोड़ों कमा सकते थे. She could have done that. And anybody is ready to take her. But she persisted. She told ना, जब यहाँ आए थे आबू जंगल था, जंगल कुछ भी नहीं था वहां पे, संसार की चमक धमक से निकलकर यहां आना और ऐसे रिमोट एरिया में इतना बड़ा कॉलेज और इतना बड़ा ये सारा कुछ नर्सेस का करना, दिस इज नॉट अ जोक. इट रिक्वायर्स सच अ डिवोशन, सच अ डेडिकेशन, बट इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू. एज शी सेड जस्ट नाउ दैट शी विल बी वेरी हैप्पी इफ वन ऑफ यू वन डे बैक्स दैट अवार्ड which she has got today. And it is possible, and it is possible again with silence, again with solitude. Again, one more thing is remaining, that is writing. I'll come to it. Silence, solitude, visualization, affirmations, and these 5 wise monkeys. Nature, walking. Create a goal. Have that positive self-talk. And last thing, 8th thing is writing. कितने लोग हैं यहाँ पर जो डायरी लिखते हैं रोज रात में अपनी डायरी, और आपकी डायरी किसी और ने लेके पढ़ ली तो हाँ
सी डायरी राइटिंग इज सच अ गुड हैबिट. सारे दिन भर में, यू नो, इन मेमोरी ट्रेनिंग, इन साइकोलॉजी ऑल्सो दे टेल, इफ यू वांट टू डेवलप योर मेमोरी, दे टेल फॉर फोटोग्राफिक मेमोरी, दे टेल यू दिस टेक्निक ऑफ डायरी राइटिंग. डायरी राइटिंग में क्या लिखना है? मैं सुबह उठा, इस तरफ से उठा या इस करवट से उठा? ट्राई टू रिकॉल. बाथरूम में बकेट कौन से रंग की थी? स्कूल में आया, कॉलेज में गया, फर्स्ट लेक्चर कौन सा था? उसमें कौन कौन सी बातें थी? एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, रात को सोने से पहले, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हुआ वो सब याद करने की कोशिश करना. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफिक मेमोरी एवरी नाइट. एंड उसके साथ ही जुड़ा हुआ है डायरी राइटिंग. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, स्टार्ट राइटिंग डायरी. इफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, राइट इन पॉइंट्स. लाइक आज मैं उठा 6 बजे उठा, उठने के बाद ये किया, उठने के बाद वो किया, पॉइंट वाइज. एक महीने के बाद फिर हर संडे उसको रिव्यू करो. उसमें लिखो, आज मैडम ने ये कह दिया या किसी दोस्त ने ये कहा तो मुझे बहुत आंसू आ गए, फिर मैं 1 घंटा तक रोई, वो भी लिख देना. फिर संडे को देखना, और संडे को जब देखोगे, अरे ये इतनी छोटी सी बात थी और मैं रो दी, ये भी कोई रोने की बात है? यू विल सी योरसेल्फ एज अ विटनेस. यू विल फाइंड सच अ स्मॉल थिंग एंड आई वाज क्राइंग, such a silly thing. I should be very strong. Recently somebody sent me an image on WhatsApp. WhatsApp पे किसी ने इमेज भेजा, 2 deer, 2 हिरन. एक हिरन है, बच्चा है, उसको एक तीर लगा और गिर गया नीचे. दूसरा वही हिरन अब थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, बहुत सारे तीर लगे हुए हैं और खड़ा है. इतने घाव, बट वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रांग. द वर्ल्ड विल हर्ट यू, बट एवरी टाइम इट हर्ट्स यू लर्न फ्रॉम इट. इट इज नॉट दैट मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे वैसा क्यों. फीलिंग देवी नहीं बनना है. इसमें से कौन कौन फीलिंग देवी है? हाथ खड़ा करना जरा. स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, फीलिंग देवी पता है ना? वो कीप ऑन क्राइंग. बात बात में जिनको रोना आता है, किसी ने कुछ बोल दिया, ये क्यों किया, रोना चालू. रूठना, रूसना, नाराज होना, ऑल दिस बिजनेस स्टार्ट्स. सो डोंट बिकम फीलिंग देवी, यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रांग इन लाइफ. सो वन ऑफ द थिंग्स फॉर पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम इज writing. Start writing diaries. So time is getting up, and with these 8 points I'll end this talk. Again, I would like to revise. What are the 8 points? First, silence. Second, solitude. Third, nature. Fourth, walking. Fifth, affirmation. Sixth, visualization. And one more you can add is this last which I said, writing. Seventh and eighth, 5 wise monkeys. Okay, जो अभी सुना इसको भी याद, रात को सोने से पहले याद करना, ये क्लास में क्या क्या सुना. आज जो जितने भी लेक्चर्स होंगे सोने से पहले याद करना, उसमें हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनी वो लिख लेना. So this is a practice of diary writing. This is not just the diary writing, but this is building self-esteem and building positive self-talk. Okay, Om Shanti. Thank you.